So hey everyone, how are you all? I hope you all are doing great and well prepared for your study. So today we have to discuss about the class 10 new NCERT pattern, chapter number 12, surface area and volume. We discuss here important formulas. Fifth number is cylinder. Cylinder look like this. Total surface area, curved surface area and the flat surface area. We learn here the important formulas. So flat surface area is pi r square. Flat surface area is pi r square. Cross surface area, curved surface area, that is 2 pi rh. The mix up of total surface area is equals to curved surface area and plus flat surface area. So the total surface area is 2 pi r bracket r plus h bracket close, and the volume of cylinder pi r square h. The total surface area of cylinder 2 pi r plus h, curved surface area of cylinder 2 pi rh, and the flat surface area of cylinder pi r square h. And the volume of the cylinder, volume is the very important for all the three-dimensional figure. So the volume of cylinder, that is pi r square h. Now next we discuss here 6 number cone. Look like this. Upper part total surface area, slant height, this is normal height, and curved surface area, flat surface area. Okay. Now the flat surface area is pi r square, curved surface area pi r l. Total is the total surface area. Total surface area is combination of the curved surface area and flat surface area. So the combination of total surface area pi r plus h, and the volume is the cone, that is 1 upon 3 pi r square h. So let me discuss here the formulas of cone. Total surface area pi r plus l, curved surface area pi r l, flat surface area pi r square, and the volume of the cone 1 upon 3 pi r square h. So now we discuss here new NCERT chapter number 12 का एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर इज 163. तो 163 पर चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो एग्जाम्पल है उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर के स्टार्टिंग में एग्जाम्पल से करते हुए फिर चैप्टर की एक्सरसाइज पर जाने वाले हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको मैं बुक में से रीड करके बताऊंगी और यहाँ पर स्क्रीन पर फ्लोट भी करेगा क्वेश्चन. तो राशिद गोट अ प्लेइंग टॉप, मतलब उसको खेलने के लिए लट्टू मिला है. हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, ही वॉन्टेड टू कलर इट विथ हिज क्रियॉन. मतलब उसको जो लट्टू मिला है उसके बर्थडे प्रेजेंट पर, उसके टॉप पर कोई भी कलर नहीं और वो चाह रहा है कि उसका जो लट्टू है उसके टॉप पर वो क्या करे, कलर करे और क्रियॉन कलर करे. द टॉप इज shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. मतलब आपको क्वेश्चन दे रखा है कि राशिद के पास में एक लट्टू है, एक टॉप है जो उसको बर्थडे के प्रेजेंट पर मिला है और उसके टॉप पर कोई भी कलर नहीं है और वो चाह रहा है कि कलर करें, और उसकी हाइट वगैरह जो भी गिवन है वो यहाँ पर आप उसको डिस्क्राइब करते हैं. तो सबसे पहले गिवन मैंने यहाँ पर लिखा है कि गिवन क्या है, क्या क्या है. तो टॉप की जो हाइट है, मतलब टोटल जो हमारा लट्टू है उसकी जो हाइट है गिवन 5 सेंटीमीटर दे रखी है. 5 सेंटीमीटर इसको हमने एच भी नोट करा है. टॉप का जो डायामीटर है, इसका जो डायमीटर है 3.5 है और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है. तो 3.5/2 ये कहाँ से मिलेगा अपने को, डायमीटर से. तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, हमें इसको इसमें क्या फाइंड आउट करना है. तो टोटल सरफेस एरिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ curved surface area of hemisphere, that is the upper part of hemisphere, and the lower part is curved surface area of cone. तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है एक ही फिगर में, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का और जो कर्व्ड है सरफेस एरिया है किसका, कोन का. तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने लिख दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दीज एंड दीज. तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ सॉल्व करने वाले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला इज 2 pi r स्क्वायर. तो 2 इंटू पाई एज इट इज, आर की वैल्यू पुटअप करी, इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे दिया है. नेक्स्ट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, द फॉर्मूला ऑफ द कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल. एल इज डिनोटेड द स्लांट हाइट ऑफ, जो दिस वन है ये क्या होती है, स्लांट हाइट ऑफ एनी कोन, जिसको डिनोट करते हैं हम एल से. तो यहाँ पर हमने स्लांट हाइट को निकाला है.
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल का जो स्क्वायर है उसके साइड में अंडर रूट में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट। एच की वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू रखते हैं, और ये जो फॉर्मूला ये जो आता है 3.25 को डबल टाइम आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, और 3.5 को डबल मल्टीप्लिकेशन करने पर उसको 4 से डिवाइड करने पर आपको ये वैल्यू मिलेगा। दोनों को ऐड कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पर जो है वैल्यू, इसका हमें रूट निकालना है। अब हमें रूट निकालते नहीं आता है तो इसकी मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने ये आंसर निकाला है और इसको राउंड अप करके 3.7 लिखा है। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आती है तो वीडियो के कमेंट में, वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद में कमेंट करिएगा तो उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर हमें पाई इंटू 3.5 अपॉन में 2 आर की वैल्यू और एल की वैल्यू मिल गई। इसको क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे दिया है। फ्रॉम द इक्वेशन 1 दिस इक्वेशन वी हैव टू पुट एट द इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड वैल्यूज। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू को पुटअप करेंगे। पुटअप कर दिया है यहाँ पर। अब 3.5 का होल ऑफ 3.5 अपॉन में 2, 3.5 अपॉन में 2, इसका होल ऑफ स्क्वायर था, उसको डबल टाइम लिख दिया है। देन प्लस करके, ठीक है, ये तो यहाँ पर है स्लांट का, प्लस करके पाई एज इट इज 3.5 अपॉन में 2, 3.7 क्या है, स्लांट हाइट है। यहाँ पर क्या करा है हमने, 2 से 2 कैंसिल आउट करा है, फिर जो रिमेनिंग वैल्यूज है उसको लिखा, और पाई की वैल्यू क्या होती है, द पाई वैल्यू इज 22 अपॉन में 7, और इसकी एक और वैल्यू होती है 3.14। अगर आपको जो भी वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में उस हिसाब से लिखना है। वैसे क्वेश्चन में 3.14 थी, इसी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 3.14 आ जाता है, जिसको 22.7 को डिवाइड करने पर मैंने 22.7 करा है, 3.5 एज इट इज ये वाला, और 3.5 अपॉन में 2 एज इट इज, प्लस करके 22 अपॉन में 7 इसकी वैल्यू रखी है, 3.5 अपॉन में 2 प्लस 3.7 कट कर दिया है, 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 1 से 2, फिर यहाँ से 7 5 से 35 एंड 5 2 से 10, 5 2 से 10 क्या होगा, जो डेसिमल है उसको नीचे लाएंगे तो 5 2 से 10 हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू को लिखा है यहाँ पर भी ऐसे कट आउट हो जाएगा। यहाँ पर 11/2 कॉमन ले लिया है, 3.5 और 3.7 को कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद में वैल्यू आएगी और 2 से इसको कट कर देंगे तो दिस वन वैल्यू इज गॉट, एंड 39.6 centimeter square is the whole answer of this question. I hope you all are understand this question, and please watch video till the end. और कुछ भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट में कमेंट करना ना भूलिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच।